Hello friends, welcome again. Today we are going to learn the last point of this chapter, living organisms. Life processes of a living organisms part 1. Okay, the last point of this topic is that cell division, which is very important point for this lesson. Okay, important property of all living cells is a cell division, which points included under cell division. Okay, we see on the board these are points included in the cell division. Okay, then first, cell division, significance of a cell division. Significance of a cell division, types of cell division, important features of mitosis and meiosis, then stages of a mitosis, then Caron kinases, that is a nuclear division, stages prophase, metaphase, anaphase, telophase, then cytokinesis, then significance of mitosis, meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. These are points included in this point. That is, this point is very large, but this point is very important. 101%. One question, filling the blanks, broad question, difference diagram, any type of question asked by this point. मतलब आपको इसमें इस पॉइंट पे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा. फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा, शॉर्ट आंसर्स में आएगा, वन लाइन सेंटेंस में आएगा, या डिफरेंस बताओ में आएगा, या डायग्राम में आएगा, या ब्रॉड क्वेश्चन में आएगा. किसी भी तरह का क्वेश्चन इस पॉइंट पे जरूर पूछा जाता है. हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, एनी एग्जाम. ओके, वी लर्न स्टेप बाय स्टेप व्हाट. ओके, important property of a living organism, living cell is a cell division. Then significance of a cell division, a new organism created from existing one. New organism is created from the existing one. Then growth of a multicellular organisms. And third, restoration of injured and emaciated body. These are major significance of a cell division. मतलब cell divisions का significance क्या है? New organisms is created, नया organism create कर सकते हैं. Multicellular organisms की growth होती है. Then restoration of injured and emaciated body. जहाँ पे मतलब पेशी का निर्माण होना है, जरूरी है. मतलब इंजुरी में पेशी का निर्माण जो जरूरी है, वो सेल डिवीजन से ही इंजुरी बढ़ती है. Then types of a cell division. There are two types of a cell division. One mitosis, second meiosis. That means सूत्री विभाजन उसको हम बोल सकते हैं, या अर्धसूत्री. सूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन. There are two types of cell division. Mitosis, that is the सूत्री विभाजन, and meiosis, अर्धसूत्री विभाजन. मतलब दोनों में सेल का विभाजन होगा, लेकिन इसमें सूत्री विभाजन होगा, इसमें हाफ, that is the अर्धसूत्री विभाजन होगा. Okay, then important features of a mitosis and meiosis. पहले हम माइटोसिस के important features देखेंगे, और then meiosis के important features देखेंगे. Okay, mitosis. Mitosis occur in a somatic cell and stem cell. Mitosis कहाँ पे होता है? Mitosis occur in a somatic cell and stem cell. Stem cell में और somatic cell में mitosis होता है. Mitosis takes place in two stages. Mitosis दो stages में होता है. Kerokinesis, division of nucleus, and cytokinesis, division of the cytoplasm. मतलब kerokinesis division. Kerokinesis, that means what we say that 1 minute. Center kerokinesis, that means जो सेंटर रहता है न्यूक्लियस का, उसका विभाजन. एंड साइटोकाइनेसिस, दैट इज जीव द्रव्य जो रहता है उसका विभाजन. दो तरीके के माइटोसिस के डिविजन्स होते हैं. देन Kerokinesis takes place into 4 stages, followed by and it is followed by cytokinesis.
chromosomes number does not change, mother cell gives rise to two daughter cells. ओके, वापस एक बार रिपीट करता हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस ऑकर इन स्टोमेटिक सेल और स्टेम सेल। स्टोमेटिक सेल में या स्टेम सेल में माइटोसिस होता है, मतलब सूत्री विभाजन। जो पेशियों का विभाजन होता है, वो विभाजन उसकी वजह से सपोज हमको इंजरी हो गई तो वहाँ की जो सेल्स है वो पूरी की पूरी भरकर आने के लिए सेल डिवीजन, माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट। देन माइटोसिस टेक्स प्लेस इन टू स्टेजेस। माइटोसिस दो स्टेजेस में होता है, कैरोनकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन। कैरोनकाइनेसिस डिवीजन ओपन न्यूक्लियस, मतलब सेंटर जो न्यूक्लियस होता है उसका विभाजन होता है कैरोनकाइनेसिस में। एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म। याद रखने के लिए आपको मतलब कैरोनकाइनेसिस डिवीजन ऑफ अ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस दैट इज द डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म। Keronkinesis takes place in four stages, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. These are four phases of a keronkinesis, and it is followed by the cytokinesis. That is a very important feature. Chromosomes numbers does not change. Mitosis में chromosome के numbers change नहीं होते. Mother cell gives rise to two daughter cells. Mother cells जो रहता है two daughter cells को जन्म देता है या दो डॉटर सेल्स निर्माण करता है। अभी मियोसिस ऑकर इन जर्म सेल। डिफरेंस में भी देख लो, अब बता रहा हूँ वो भी समझ लो। माइटोसिस ऑकर इन स्टेम सेल और स्टोमेटिक सेल, बट मियोसिस ऑकर इन जर्म सेल। माइटोसिस टेक्स प्लेस टू स्टेजेस, कैरोनकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। Okay, keronkinesis means division of a nucleus and cytokinesis division of a cytoplasm. वैसे meiosis takes place in two parts. meiosis भी two part में division होता है meiosis का, meiosis 1, meiosis 2. meiosis 1 there is a crossing over genetic recombination and homologous chromosomes are divided into two groups forming two haploid cells. Meiosis 1 and meiosis 2 takes place in four stages. Meiosis 1 और meiosis 2 चार stages में होता है. Each that is a prophase, metaphase, anaphase and telophase, followed by prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. Chromosome numbers is reduced to half. यहाँ पे chromosome reduce कम होते हैं, half होते हैं. Mother cell give rise to 4 daughter cells. मदर सेल्स जो होता है फोर डॉटर सेल को निर्माण करती है। मतलब आपको थोड़ा बहुत फर्क समझ में आया होगा माइटोसिस और मियोसिस में क्या क्या होता है, मतलब फीचर्स ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। समझने के लिए अगर ध्यान देकर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो डिप्लॉइड सेल्स आर 2n, देन हैप्लॉइड सेल्स आर n. All the normal body cells are always 2n, while only gametes formed by reduction division of n. In 2n condition, each type of chromosomes is in pair with n condition, and there is a single chromosome of each type. Then chromosome का structure ये सब आपको you are seeing in the textbook. What is the diagram of a chromosome? आपको समझ में आएगा। मतलब अभी आपको फीचर्स, सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, देन स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। उसमें माइटोसिस का विभाजन जो होता है, माइटोसिस दैट इज सेल डिवीजन का एक प्रकार है। माइटोसिस दैट इज सूत्री विभाजन, जिसको हम बोल सकते हैं सूत्री विभाजन में। उसके मतलब कैरोनकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन जो होता है दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज इसको हम बोल सकते हैं पूर्वावस्था, मेटाफेज यानी मध्यावस्था, एनाफेज उसको पश्चात अवस्था एंड टेलोफेज दैट इज अंत्यावस्था।
मतलब जो पेशियों का डिवीजन होता है, पूर्व अवस्था में कैसा होता है, मध्य अवस्था में क्या होता है, पश्चिम अवस्था में क्या होता है और अंत्य अवस्था में क्या होता है, ये 4 स्टेजेस कैरन काइनेसिस में, दैट इज द न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन हम उसको बोल सकते हैं। प्रोफेज में कंडीशन ऑफ अ थिन थ्रेड लाइक अ क्रोमोसोम, प्रोफेज में कंडीशन क्या होता है, क्रोमोसोम जो रहता है, क्रोमोसोम कंडीशन ऑफ अ थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम, थिन पतला थ्रेड लाइक क्रोमोसोम रहता है प्रोफेज में, मतलब पूर्वावस्था में, दैट मीन्स वी से दैट पूर्वावस्था, प्राथमिक अवस्था में। मेटाफेज में कंप्लीशन ऑफ अ कंडेंसेशन ऑफ अ क्रोमोसोम्स, मध्य अवस्था में कंप्लीशन ऑफ अ कंडेंसेशन। एनाफेज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर क्रोमोसोम्स व्हिच अपीयर टू लाइक अ बंच ऑफ बनानास, they are then pulled away from each other. और टेलोफेज में क्रोमोसोम reach at opposite poles of the cell and their decondensation begins. उनका decondensation start होता है, मतलब पहली अवस्था में क्या होता है, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम, थीन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम रहता है पूर्व अवस्था में। मध्य अवस्था में क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ अ कंडेंसेशन ऑफ अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीशन होता है। एनाफेज मतलब पश्च अवस्था, पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्च अवस्था और अंत्य अवस्था। अभी पश्च अवस्था में फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर क्रोमोसोम्स, दो डॉटर क्रोमोसोम्स में तैयार होते हैं, व्हिच अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनानास, दे आर देन पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर पुल्ड अवे, एक दूसरे से अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब पुल धक्का मारते हैं। टेलोफेज मतलब अंत्य अवस्था में chromosomes reach at opposite poles of the cell and their decondensation begins, उनका decondensation शुरुआत होता है। दूसरा प्रोफेज में, मतलब ये 4 पॉइंट्स है, उसका हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में डिवीजन देखेंगे। क्रोमोसोम become short and thick, formation of a sister chromatids begin, क्रोमोसोम begins short and thick, शुरुआत में क्रोमोसोम शॉर्ट होते थे, थिक होते थे, एंड फॉर्मेशन ऑफ अ सिस्टर क्रोमैटाइड्स, सिस्टर क्रोमैटाइड्स फॉर्मेशन स्टार्ट होता है प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होता है, क्लियरली विजिबल विद देयर सिस्टर क्रोमैटाइड्स अलोंग विद सिस्टर क्रोमैटाइड्स, मतलब पूर्व अवस्था के बाद मध्य अवस्था में क्लियरली विजिबल, मतलब हम देख सकते हैं क्या, along with sister chromatids, sister chromatids पूर्व अवस्था में शुरुआत होती है, मध्य अवस्था में हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। एनाफेज splitting of a centromeres with a separation of a sister chromatids of each chromosome, their separation begins movement in opposite direction due to the help of a spindle fibers, मतलब splitting of a chromosomes with the separation of a sister chromatids, separation of a sister chromatids of each chromosome, हर एक क्रोमोसोम से सिस्टर क्रोमैटाइड्स सेपरेट होते हैं, देयर सेपरेशन बिगिंस, उनका सेपरेशन शुरुआत होता है, मूवमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में उनका सेपरेशन होता है, ड्यू टू द डायरेक्शन, ड्यू टू द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर की मदद से उनका सेपरेशन शुरुआत होता है। और टेलोफेज में क्रोमोसोम्स बिगिन थ्रेड लाइक एंड थिन स्टार्ट डिसअपीयरिंग, अंत्य अवस्था में वो थ्रेड लाइक थिन दिखते हैं और स्टार्ट टू डिसअपीयरिंग, मतलब दिखना बंद होता है। ये दूसरा पॉइंट्स हो गया। चारों स्टेज में हर एक पॉइंट का हम चारों अवस्था में कैसा कैसा रूपांतरण होता है मैं ये बता रहा हूँ। Then third point, duplication of a centroids and movement of each centroid to the opposite pole of the cell in प्रोफेज में, मतलब पूर्व अवस्था में ऐसा होता है। मेटाफेज chromosomes arranged in parallel to the equatorial plane of the cell, formation of the spindle fibers between centromer of each chromosome and both centroids. Each set of chromosomes reach at two opposite poles of the cell in anaphase, and in telophase spindle fibers completely disappears. मतलब अभी तीसरा जो पॉइंट्स है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज,
पूर्व अवस्था में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ अ सेंट्रोइड एंड मूवमेंट ऑफ ईच सेंट्रोइड टू द अपोजिट पोल ऑफ दिस सेल। द अपोजिट पोल के लिए डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोइड्स मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स ऑफ ईच सेंट्रोइड, ईच हर एक सेंट्रोइड की मूवमेंट्स होती है एक दूसरे से अलग दिशा में। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अरेंज्ड इन पैरेलल इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल, फॉर्मेशन ऑफ अ स्पिंडल फाइबर्स बिटवीन सेंट्रोमीटर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रोइड। थर्ड पॉइंट मतलब एनाफेज में पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था। अब अंत्य पश्च अवस्था में क्या होता है, ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल। हर एक क्रोमोसोम का जो सेट रहता है एक अपोजिट पोल के मतलब रीच पहुंच जाता है, अपोजिट पोल के सेल के अपोजिट जगह पे पहुंच जाता है पश्च अवस्था में। और अंत्य अवस्था में स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपीयर, जो स्पिंडल रहता है फाइबर का वो कंप्लीटली डिसअपीयर होता है टेलोफेज में। अभी चौथा पॉइंट प्रोफेज में मतलब पूर्व अवस्था में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिसअपीयर। मेटाफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर। एनाफेज में क्या होता है, सेपरेटेड डॉटर क्रोमोसोम्स। एंड टेलोफेज में क्या होता है, टू डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन द सेल, रीअपीयरेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। वापस मैं रिपीट करता हूँ, पूर्व अवस्था दैट इज अ प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिसअपीयर। मेटाफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर, मतलब पूर्व अवस्था के बाद मध्य अवस्था में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर होता है। पश्च अवस्था में सेपरेटेड डॉटर क्रोमोसोम्स सेपरेशन होता है पश्च अवस्था में। और अंत्य अवस्था में क्या होता है, टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड इन द सेल, टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड मतलब उनका सेपरेशन होकर दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, रीअपीयरेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, देन ये हो गया केरोकाइनेसिस दैट इज अ न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होके उनकी चार अवस्था में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्च अवस्था और अंत्य अवस्था में। अभी साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ये माइटोसिस में ही होता है। मतलब माइटोसिस मतलब सूत्री विभाजन में केरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस। Cytokinesis is a division of cytoplasm. In animal cell, a notch is formed at the equatorial plane of the cell, which depends gradually and thereby two new cells are formed. In plant cell, cell plate is formed exactly along midline of the cell. मतलब cytokinesis that is a cytokinesis means division of cytoplasm. cytoplasm का division होता है। In animal cell, notch is formed at the equatorial plane. एक गांठ के जैसा होता है, इक्वेटोरियल प्लेन पे दिखता है of the cell, which depends gradually on thereby two new cells are formed. उसकी वजह से दो new cells निर्माण होते हैं। In plant cell, a cell plate is formed exactly along midline of the cell. मतलब सेल के midline में, exactly midline में एक सेल प्लेट फॉर्म होता है मिडलाइन में और उसके साथ दो सेल्स निर्माण होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ अ माइटोसिस, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन एंड एमिशिएटेड बॉडी, फॉर वाउंड हीलिंग एंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड सेल। पेशी की निर्माण, ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए भी माइटोसिस का होना जरूरी है। दैट इज अ सिग्निफिकेंस। देन लास्ट पॉइंट इज दैट इज अ मायोसिस। मेयोसिस और मायोसिस। मेयोसिस दैट इज अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस सूत्री विभाजन एंड मेयोसिस अर्धसूत्री विभाजन। देयर आर टू स्टेजेस, इसमें भी टू स्टेजेस होते हैं, दैट इज द मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। मेयोसिस, by meiosis from one diploid cell, 4 haploid cells are formed. Meiosis form 1 diploid cell and 4 haploid cell are formed. एक
डिप्लॉयड सेल और 4 हैप्लॉयड सेल्स निर्माण होते हैं. इन मेयोसिस crossing over between non-sister chromatids of a homologous chromosomes occur. This results in a genetic recombination. Meiosis crossing over between non-sister chromatids. जो non-sister chromatids है उसके ऊपर meiosis crossing, उसके ऊपर crossing over the between non-sister chromatids for homologous chromosomes occurs. This results genetic recombination. इसका रिजल्ट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में होता है. The 4 daughter cells are formed after completion of a meiosis. 4 daughter cells निर्माण होते हैं after completion of a meiosis. meiosis completion होने के बाद 4 daughter cells निर्माण होते हैं. Are genetically recombined and not exactly alike and also exactly similar to that parent cell. Not exactly alike मतलब totally डिफरेंट नहीं होते, अल्सो एग्जैक्टली सिमिलर भी नहीं होते, अलग भी नहीं होते, सिमिलर भी नहीं होते टू देयर पेरेंट सेल. पेरेंट सेल से थोड़ा अलग भी नहीं होते, थोड़ा सिमिलर भी, थोड़े बहुत मिश्र, ऐसी तरह से 4 सेल्स निर्माण होते हैं डॉटर सेल. स्पोर्स एंड गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय मेयोसिस. स्पोर और गैमेट्स दोनों फॉर्म होता है मेयोसिस में. मेयोसिस हेल्प्स रिस्टोर, मेंटेन and chromosome numbers. Meiosis help to restore and maintain chromosome number. Chromosome number maintain करने के लिए meiosis का उपयोग करते हैं. अभी हम meiosis 1 और meiosis 2. meiosis 1 homologous chromosomes undergo crossing over the hence there is a genetic recombination. अभी हमने देखा homologous chromosomes are divided into 2 groups. Homologous chromosomes are divided into 2 groups from one to form 2 haploid cells are formed. वहाँ पे 2 haploid cells निर्माण होते हैं और 2 haploid cells are formed. Prophase 1 में meiosis is lengthy phase which is subdivided into 5 phases. Prophase 1 of a meiosis. meiosis की prophase 1 में वो जो लेंदी फेज है, मतलब वो जरा सा व्हाट वी से लेंदी फेज होने की वजह से विच इज सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस, जो कि 5 किस्तों में विभाजित होती हैं. लेप्टोनेन, ज़ाइगोटिन, पैचोटेन एंड डिप्लोटेन एंड डाइकेनेसिस ड्यूरिंग द पैचेंटिन क्रॉसिंग ओवर द टेक्स प्लेस. एंड meiosis 2 में meiosis 2 is similar to the mitotic division. 2 haploid cells that are produced in the meiosis 2 now undergo further division or 4 haploid cells. मतलब ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है that is meiosis. meiosis में क्या होता है, इसमें इस विभाजन में 2 तरह के, मतलब meiosis 1 2 अर्ध गुणसूत्री जो बोलते हैं उसको, वो अलग होके पेशी विभाजन होते हैं और उसकी वजह से 4 एक तरह की पेशी तैयार होते हैं, जिसमें वो हम युग्मक और बीजाणु बोल सकते हैं. वो तैयार होने की अवस्था ये मेयोसिस में होती है. मेयोसिस जो होता है 2 डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स तैयार हो जाते हैं. दैट मीन्स 2n से 4n उनको एक हमको समझ में आता है. दैट इज व्हाट वी से जनक पेशी और जनुकीय पेशी, पेरेंट सेल्स, डॉटर सेल्स पेरेंट सेल्स में तैयार हो जाती है. दैट इज माइटोसिस, मेयोसिस, ये दोनों ही पेशी विभाजनों की अवस्था है. दोनों के अलग अलग फीचर्स हैं, दोनों की अलग अलग जानकारी है, दोनों के सिग्निफिकेंस अलग है, बट बोथ आर इसेंशियल फॉर द body growth, body development. Okay, here lesson is finished. But you see the diagrams in your textbook. That is what is a chromosome. With the diagram related with the prophase, metaphase, anaphase and telophase. Also meiosis, mitosis, meiosis की diagrams. और जो ओनियन का सेल विभाजन जो होता है, ओनियन सेल का,
यूनियन का, वो भी हम टेक्स्ट बुक में हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं और उसमें से आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।